Good morning, everyone. Welcome to Brainy Latch once again. And, guys, on special request, having been requested a lot by the students, I have decided to prepare a lecture on the poetic devices. Poetic devices, which are also known as figure of speech and literary devices. And as you all know, this year, आपकी सिर्फ पोम में से और यू कैन से दैट पोइट्री में से लिटरेरी डिवाइसेस पोइटिक डिवाइसेस नहीं आने वाली. Even the examiner can ask literary devices from the chapter as well. So we have brought you this lecture. Before we move on, I want all of you to share this lecture with your friends. इसको देखने के बाद अपना feedback भी दें और अपने दोस्तों के साथ share भी कीजिए. चलिए, without wasting much of the time, let's move on to a first poetic device, literary device or figure of speech, that is simile. Simile क्या होता है? देखिए, simile is one of the literary devices. Simile compares one thing to another. Comparison के लिए इसका यूज़ किया जाता है of a different kind and yet alike in some significant way. And more importantly, जब भी comparison like और as words के साथ किया जाए, note my point. मेरे point को note कर लें सारे के सारे. Whenever there is a comparison using the word like और as, तो guys आपकी पोएटिक डिवाइस, आपकी लिटरेरी डिवाइस, आपकी फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी गाइस? सिमिली. डू टेक केयर ऑफ स्पेलिंग एज वेल. अधिकतर बच्चे सिमिली की स्पेलिंग भी गलत लिखाते हैं, सही नहीं लिख पाते. तो सिमिली की स्पेलिंग भी सारे नोट कर ले. दैट इज SIMILE. गॉट द पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ लाइन्स हैं फ्रॉम द पोम माई मदर एट 66. Wan pale as a late winter's moon. Here the poet compares her mother with a late winter's moon. ये भी line देखिए, like that of a corpse. This is also from my mother at 66. This world is like a rat trap. Here the comparison is being made of the world to the rat trap using the word like. He fought like a king. Whenever like और as word दिख जाए आपको statement में guys, so always remember that the answer would be simile. Got the point? Let's move on to the second one. Second पे बढ़ते हैं guys, that is metaphor. See, metaphor is as same as simile is. There is a slight difference. Definition is given right in front of you. A word or a phrase for one thing that is used in place of another thing in order to show or suggest that they are similar. In short, comparison करने के लिए इसका भी use होता है, similarity दिखाने के लिए इसका use होता है. बट लाइक और एज ये दोनों वर्ड्स इसके अंदर यूज नहीं किए जाते. गॉट? देखिए, एक सेंटेंस है, लाइफ इज अ बिग रोलर कोस्टर राइड. दिस इज मेटाफर. लेकिन अगर मैं इसी में लाइक और एज लगा दूं, अगर मैं इसी को लिखूं, लाइफ इज लाइक अ बिग, और आगे मैं उसको कंटिन्यू करूं, लाइक वर्ड का अगर मैं यूज कर लूंगा गाइज, then it would not be metaphor. ये क्या हो जाएगा? simile. So there is a simple difference. जहाँ like और as आ जाए, that is simile, और जहाँ comparison हो, similarity दिखाई जाए without using like और as, that is metaphor. Next example देखिए, garbage to them is gold. garbage की similarity दिखाई गई है gold के साथ, comparison किया गया है, लेकिन like और as word का use नहीं किया गया. Got it? He is the big fish. उसका comparison big fish से किया गया, similarity बिग फिश से की गई है, बट विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज. सो गाइस, जहाँ लाइक और एज दिख जाए दैट इज सिमिली, और जहाँ कंपैरिजन हो, सिमिलैरिटी दिखाई जाए विदाउट यूजिंग लाइक और एज, दैट इज मेटाफर. गॉट द पॉइंट गाइस? लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन. तीसरी की बात करते हैं गाइस. थर्ड लिटरेरी डिवाइस इज एलिट्रेशन. वेरी सिंपल गाइस. देखिए, एलिट्रेशन को समझने के लिए आपको कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स को समझना होगा. देखिए, वॉवल्स 5 होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू. रेस्ट आर कॉन्सोनेंट्स. बाकी क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं. एलिट्रेशन क्या होता है? द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स. जब भी कॉन्सोनेंट साउंड जैसे बी, सी, डी, या हम बोले एक्सेप्ट वॉवल्स, वॉवल्स को छोड़कर, जब भी किसी स्टेटमेंट के अंदर बार बार कॉन्सोनेंट्स रिपीट हो, कॉन्सोनेंट जो लेटर्स हैं वो रिपीट हो एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, बार बार रिपीट हो. लेट मी वंस अगेन टेल यू, मैं वॉवल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉन्सोनेंट रिपीट हो, तो गाइज वो क्या बन जाता है? एलिट्रेशन.
फर्स्ट लेटर होना चाहिए कॉन्सोनेंट, पूरा वर्ड नहीं, पूरा वर्ड होते ही दैट बिकम्स रेपिटेशन, वो आगे हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, देखिए डी 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 3 बार, 1 2 3, एक ही कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट हो रहा है एक ही लाइन के अंदर, सो दैट विल बी एलिट्रेशन, गॉट इट। उसके बाद देखिए, द सी वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट टोज, फिर एक कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है तो दैट इज एलिट्रेशन। ही सॉ अ स्पाइडर एंड स्नेक ऑन द शेल्फ, यहाँ एस यूज हो रहा है, एस इज ऑल्सो अ कॉन्सोनेंट गाइज, so the answer will be quite clear, that is alliteration. Got it? After watching this lecture you won't have any doubt whatsoever about poetic devices. ये 30 poetic devices है, 30 कर लीजिए, believe me कम से कम 2 questions आपको figure of speech, literary devices और poetic devices पे जरूर मिलने वाले हैं guys. Not only from the poem or the poetry section but also from prose, fiction and non-fiction as well. Got the point? लेट्स मूव ऑन टू रेपिटेशन। फोर्थ अपनी लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं। रेपिटेशन क्या होता है, देखिए एलिट्रेशन और रेपिटेशन में क्या डिफरेंस है। एलिट्रेशन में एक लेटर, 1 लेटर रिपीट होता है, दैट शुड बी कॉन्सोनेंट, होना भी क्या चाहिए, वो कॉन्सोनेंट। रेपिटेशन में क्या होगा गाइस, पूरा का पूरा वर्ड रिपीट होगा, गॉट द पॉइंट। द रिपीटेड यूज ऑफ वर्ड और वर्ड पैटर्न जब आ जाता है तो वो क्या बन जाता है गाइस, रेपिटेशन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं, एग्जाम्पल है इसका, ऑल शी डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। देखिए यहाँ पर खाली एस 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 रिपीट नहीं हो रहा, पूरा का पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है गाइस, सो इट इज रेपिटेशन। ये क्या बन गया गाइस, आपका रेपिटेशन बन गया, गॉट द पॉइंट गाइस। ब्रेक और ब्रेक, ओपन टिल दे ब्रेक, देखिए पूरे के पूरे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। दिस स्टेटमेंट हैज बीन पिक्ड अप फ्रॉम द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, तो ये क्या हो गया गाइस, आपका रेपिटेशन हो गया। आई फेल्ट हैप्पी टू सी हैप्पी मेक अदर्स हैप्पी, देखिए हैप्पी है तो ये फिर क्या हो गया गाइस, आपका रेपिटेशन हो गया। तो डिफरेंस शुड बी क्वाइट क्लियर, डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन एलिट्रेशन एंड रेपिटेशन। डू वॉच दिस वीडियो अगेन so that it can set in your mind, so that you can get to understand what is the difference between alliteration and repetition. Let's move on to the next one, that is personification guys. Personification की बात कर लेते हैं। Personification is quite simple, बहुत simple है, बहुत टाइम से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। Personification जो बना हुआ है ये verb से बना हुआ है, that is to personify. Personify का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को एट्रीब्यूट कर देना, क्या एट्रीब्यूट कर देना, ह्यूमन क्वालिटीज, किसी भी ऑब्जेक्ट को ह्यूमन की क्वालिटी दे देना। सन को आपने ह्यूमन की क्वालिटी दे दी, टेबल को आपने ह्यूमन की क्वालिटी दे दी, फैन को आपने ह्यूमन की क्वालिटी दे दी, इट मीन्स यू आर पर्सोनिफाइंग इट, सो द पोएटिक डिवाइस इज पर्सोनिफिकेशन, गॉट इट गाइस। पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच इज सेम। अगर पोम में से आता है, पोइट्री में से आता है तो इट बिकम्स पोएटिक डिवाइस, अगर लिटरेचर में कहीं से भी आ रहा है तो दैट इज लिटरेरी डिवाइस और यू कैन कॉल इट फिगर ऑफ स्पीच, गॉट इट। द प्रैक्टिस ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एज अ पर्सन एंड एंडोइंग इट विद ह्यूमन ट्रेट्स, वो क्या हो जाता है गाइस, पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। द सन स्ट्रेच्ड इट्स गोल्डन आर्म, अब देखिए सन जो है नॉन लिविंग है, वो कैसे अपने आर्म्स को स्ट्रेच कर सकता है। आर्म्स को स्ट्रेच करने की क्वालिटी किस में होती है गाइस, ह्यूमन में। यानी ह्यूमन वाली क्वालिटी किसको दी गई है गाइस, एक नॉन लिविंग चीज को, एक ऑब्जेक्ट को ह्यूमन की क्वालिटी दी गई है, तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए, द ट्रीज वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग, ट्रीज डांस कर रहे थे, डांसिंग एंड फ्लटरिंग किसकी क्वालिटी है गाइस, ह्यूमन की है, ट्रीज को दी गई है, ऑब्जेक्ट्स को दी गई है। आई हर्ड माई हार्ट क्राई, मैंने अपने दिल को रोते हुए सुना। अब देखिए क्राई, रोना, आपको पता है रोना धोना किसकी क्वालिटी है गाइस, ह्यूमन की। एंड हार्ट जो है गाइस, आपका हार्ट जो है वो एक नॉन लिविंग चीज है, एक ऑब्जेक्ट है, गॉट द पॉइंट गाइस। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये तो सिंपल है, आपने बहुत बार पढ़ी होगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज पन एंड एंटीथीसिस। दोनों को देख लेते हैं गाइस, पन और एंटीथीसिस क्या होती है। बहुत बार पूछी गई है पन आपके एग्जाम में, लास्ट ईयर भी पूछी गई थी। लास्ट ईयर तो एग्जाम नहीं हुआ कोविड के, लास्ट टू लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं। पन क्या होता है गाइस,
द पन कैन यूज मल्टीपल मीनिंग ऑफ द सेम वर्ड, जब सेम वर्ड मल्टीपल मीनिंग्स कन्वे करे। होमोनिम्स, होमोनिम्स क्या होता है गैस? प्रोनाउंसिएशन तो सेम होती है, वर्ड्स विच हैव सेम प्रोनाउंसिएशन बट दे आर डिफरेंट इन मीनिंग। अगर आपको होमोनिम्स होमोफोन्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे सर्च बॉक्स पे डाल के होमोनिम्स डाल देना, यू विल गेट हंड्रेड्स, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो सेम वर्ड होते हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, लेकिन मीनिंग क्या होते हैं गाइस? डिफरेंट होते हैं। करेक्ट? अब देखिए, आई एम अ मेंडर ऑफ बैड सोल्स, होमोफोन्स है, होमोफोन्स बोल लो, होमोनिम्स बोल लो गाइस। सोल, SOUL, SOLE, सुनने में क्या लगता है? सॉल ही लगता है। होमोफोन्स का यूज किया गया, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग दोनों के अलग है। एक सॉल होती है आत्मा, एक सोल होती है जो हमारे शू के बॉटम पे होती है, दैट इज कॉल्ड सोल। तो वो कह रहा है कि मैं बैड सोल्स को रिपेयर करता हूँ, रिपेयर मतलब सुधारता हूँ। अब एक ही तीर से वो दो शिकार कर रहा है। जब एक तीर से दो शिकार हो, एक वर्ड दो मीनिंग कन्वे करे, मल्टीपल मीनिंग कन्वे करे, तो क्या बन जाता है गाइस? वो पन बन जाता है। स्टिल रिंग्ड विद ओडील्स, यहाँ भी रिंग के हैं जो वो दो मीनिंग है। एक तो रिंग ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, जो ज्वेलरी का पार्ट होती है गाइस, और एक जो रिंग है वो रिंग बात की जा रही है सर्कल की। दिस line has been picked up from Aunt Jennifer Steiger's one of the poems of class 12th। तो यहाँ रिंग के दो मीनिंग है इसलिए पन है। पीपल शुड स्टॉप मूविंग देयर आर्म्स, आर्म्स याद रखना गाइस, यहाँ भी दो मीनिंग कन्वे कर रहा है। एक तो आर्म्स का मीनिंग यहाँ हैंड्स है और एक आर्म्स का मतलब यहाँ वेपन्स है। दिस स्टेटमेंट हैज बीन पिक्ड अप फ्रॉम कीपिंग क्वाइट, वन ऑफ द पोएम्स ऑफ क्लास 12th as well। Got it? Let's move on to next one guys, that is antithesis। quite न्यू है ये बच्चों के लिए, स्पेशली फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। बाकी स्टूडेंट्स, लिटरेचर के स्टूडेंट्स, तो दे हैव बीन स्टडिंग इट फॉर ईयर्स, रिसर्च भी करते हैं लोग एंटीथीसिस के ऊपर। एंटीथीसिस क्या? द जक्सटापोजिशन ऑफ कंट्रास्टिंग वर्ड्स और आइडियाज टू गिव अ फीलिंग ऑफ बैलेंस। जब भी जक्सटापोजिशन ऑफ कंट्रास्टिंग वर्ड्स, जब ओपोजिट वर्ड्स एक लाइन के अंदर आ जाते हैं, याद रखना इकट्ठे नहीं, इकट्ठे आ जाएंगे तो ये दूसरी पोएटिक डिवाइस बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन। इकट्ठे नहीं आने चाहिए, इकट्ठे बनते ही ऑक्सीमोरन हो जाएगा गाइस ये। अगर एक ही लाइन में ऑपोजिट वर्ड्स आ रहे हैं, इकट्ठे नहीं अलग अलग आ रहे हैं, तो दैट इज एंटीथीसिस। फॉर एग्जांपल देखिए, पीस एंड वॉर, गुड एंड एविल, इकट्ठे आते तो ये क्या बन जाते हैं गाइस? ऑक्सीमोरन। लेकिन इकट्ठे नहीं आ रहे। स्पाइसी फूड इज हेवन ऑन द टंग बट हेल इन द टमी, यहाँ भी ऑपोजिट वर्ड्स हैं, कंट्रास्टिंग वर्ड्स हैं, लेकिन टुगेदर नहीं है। टुगेदर होते तो ये ऑक्सीमोरन हो जाता, टुगेदर नहीं है तो ये क्या बन जाएगा गाइस? एंटीथेसिस। गॉट द पॉइंट गाइस? आई होप इट इज गेटिंग क्लियर, सभी को समझ आ रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं 8 पे, दैट इज ओनोमटोपिया। ओनोमटोपिया गाइस साउंड के लिए यूज होती है, सभी को पता है। साउंड जहाँ आ जाती है, चाहे वो बार्किंग की साउंड हो, चाहे वो क्लैपिंग की साउंड हो, चाहे वो थंडर क्लैप हो, चाहे वो बीज की बज हो, चाहे वो किसी का हो, ये जो सारी साउंड्स है उनके लिए कभी भी साउंड वाले वर्ड्स आपको दिख जाए, सो आपका आंसर क्या होगा? ओनोमटोपिया। स्पेलिंग देख लेना बस, स्पेलिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ONOMATO, ओनोमटोपिया। गॉट द पॉइंट गाइस? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज एसोनेंस। एसोनेंस देख लेते हैं। एसोनेंस में क्या है गाइस? एसोनेंस है आपकी the use of words that have the same or very similar vowel sound near one another। देखिए, एसोनेंस और एलिट्रेशन में डिफरेंस क्या है गाइस? एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड आती है एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, और एसोनेंस आपको पता है वोवल बिगिनिंग में नहीं आता, रेयरली आता है। वोवल आता है फर्स्ट लेटर के बाद या सेकंड लेटर के बाद। जब भी सेम वोवल रिपीट हो, सेम वोवल गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, वोवल, कॉन्सोनेंट आता है बिगिनिंग में तो एलिट्रेशन हो जाता है, लेकिन जब वोवल आता है, और वोवल कभी बिगनिंग में नहीं आता, बीच में अगर सेम वोवल रिपीट हो रहा है तो दैट इज एसोनेंस। फॉर एग्जांपल देखिए, फैट में ए, कैट में ए, हैड में ए, ये ए आई रहा है, स्मैक में ए। यहाँ देखिए, इसमें वोवल सेम, वोवल सेम, वोवल सेम, वोवल सेम, वोवल सेम। जब सेम वोवल्स आते हैं गाइस तो इट बिकम्स एसोनेंस। क्या बन जाता है गाइस? वो एसोनेंस। करेक्ट? इसमें भी देखिए, राइजेस, हाई, ब्राइट, आई, तो देखिए इसमें भी वोवल यूज हो रहा है। आई इज अ वोवल, ए भी क्या होता है? वोवल होता है। जब भी वोवल इकट्ठे एक जैसे यूज हो तो दैट इज एसोनेंस। हियर द मेलो वेडिंग बेल्स, हियर,
ये देखिए ई ई ई ई, तो ये भी क्या हो गया गाइस आपका एसोनेंस आ गया। ऐसी कॉन्सोनेंस भी होता है, तो जैसे ही आएगा हम उसको डिस्कस करेंगे। वी वर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीमोरन गाइस, ऑक्सीमोरन आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑक्सीमोरन क्या होता है गाइस? द कंजॉइनिंग ऑफ टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स, जब दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को हम मिला देते हैं वो क्या बन जाता है? ऑक्सीमोरन बन जाता है गाइस। हैप्पीली मैरिड इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरन। नो मैरिड मैन कैन बी हैप्पी, लेकिन दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को इकट्ठा यूज किया गया। जॉक्स अपार्ट, आई एम जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो मैरिड होते हैं वो हैप्पी नहीं होते, तो दोनों वर्ड्स को इकट्ठा यूज किया गया, दैट इज ऑक्सीमोरन। और भी एग्जांपल देख लेते हैं। डेफनिंग साइलेंस, देखिए साइलेंस का मतलब होता है चुप्पी, और डेफनिंग होती है बहरा करने वाली। तो चुप्पी आपको कभी भी बहरा नहीं कर सकती, ये वर्ड इसका ऑपोजिट है, ये इसका ऑपोजिट है। इंटेलिजेंट डंकी, डंकी कैन नेवर बी इंटेलिजेंट, गधा कभी इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, तो ये दोनों भी कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं। वाइज आउल, आउल भी कभी, उल्लू जो है वो कभी भी समझदार नहीं हो सकता। तो गाइज ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ऑक्सीमोरन के हैं। जस्ट गो टू गूगल एंड राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरन, आपको दुनिया भर के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। करेक्ट, वी हैव ब्रॉट टू यू अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइज। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड सिनेक्डकी। सबसे पहले तो यू शुड बी एबल टू प्रोनाउंस इट क्लियरली गाइज। सिनेक्डॉकी नहीं होता गाइज, इट इज सिनेक्डकी, इट इज सिनेक्डकी। गॉट इट? डकी आपको बोलना है, सिनेक्डकी। बहुत सारे टीचर्स को भी मैंने सिनेक्डॉकी बोलते हुए देखा है, इट इज सिनेक्डकी। गॉट इट? तो सिनेक्डकी क्या है? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच wherein a part is made to represent the whole, जहाँ पर एक पार्ट पूरी चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपके पास कार है, अगर आप बोल दोगे कि मैं पहियों पर आया हूँ, तो इसका मतलब सभी समझ जाएंगे कि आप कार पर आए हो, या फिर आप बाइक पर आए हो, या फिर आप ट्रक पे आए हो, जिनमें क्या लगता है? व्हील लगता है। तो ये जो एक पार्ट है किसी भी मोटर का, किसी भी बाइक का, किसी भी कार का, ये पूरे को रिप्रेजेंट करता है, तो दैट बिकम्स सिनेक्डकी। एग्जाम्पल देखिए, they came on their wheels, on their wheels का मतलब है guys they came by their cars। तो wheels यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है guys? पूरे पार्ट को, एक पार्ट पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 brains are enough to deal with this problem, यहाँ पर brains का मतलब है guys 5 men, MEN, men। Got it? तो ब्रेन एक पार्ट है ह्यूमन बॉडी का, वो पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दैट इज सिनेक्डकी। द शिप वॉज लॉस्ट विद ऑल हैंड्स, यहाँ पर हैंड्स का मतलब है गाइस जितने भी क्रू मेंबर्स हैं, जितने भी मेन थे, सभी को शिप ने खो दिया। गॉट द पॉइंट? हैंड जो है वो बॉडी का पार्ट है। जब एक पार्ट पूरी चीज को रिप्रेजेंट करेगा गाइस, सो दैट इज सिनेक्डकी। सिनेक्डकी आपकी हर पोम में यूज होगी, अधिकतर पोम्स में यूज होगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन सब में यूज होगी। गॉट इट? आई मे बी रॉन्ग, लेकिन अधिकतर पोम्स में, पोएट्री सेक्शन में आपकी सिनेक्डकी आपको देखने को मिलेगी। टीचर से बोलिए और एग्जांपल्स देंगे आपको, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। गॉट इट? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस। आगे बढ़ते हैं सिनेक्डकी के आगे। एपिथेट, वेरी सिंपल गाइस, वेरी वेरी सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। एपिथेट का मतलब होता है गाइस एडजेक्टिव। बहुत सारे लोग इस वर्ड को भी गलत बोलते हैं गाइस, एडजेक्टिव नहीं होता, डी इज साइलेंट, दैट इज एडजेक्टिव। गॉट इट? तो एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव गाइस। जब हम किसी को कोई क्वालिटी देते हैं, किसी को उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं, बी इट अ पर्सन और थिंग, तो दैट बिकम्स एपिथेट। गॉट इट? एपिथेट इज एन एडजेक्टिव और अ फ्रेज गिवन टू वन फॉर वंस क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही वाज कॉल्ड इवेंट्स द ब्रेक। This chapter is not going to be the part of your upcoming examination, but it is one of the best chapters of class 12. इसको जरूर पढ़ना, इवेंट्स द ब्रेक को डेफिनेटली आप पढ़ोगे। तो इवेंट्स को एक क्वालिटी दी गई थी, इवेंट्स द ब्रेक, बिकॉज ही वॉज यूज टू एस्केपिंग द प्रेजेंस, ही वॉज यूज टू फ्लीइंग अवे, उसको आदत थी भागने की, इसलिए उसको इवेंट्स द ब्रेक बोला गया था। गॉट इट? ही कॉल्ड द वाइट हेयर्ड डायरेक्टर। गाइस उसको क्वालिटी दी गई है, बालों की उसके क्वालिटी को, एक्सपीरियंस्ड मैन को वाइट हेयर्ड बोला गया है यहाँ पे, तो ये एपिथेट की क्वालिटी है। हार्ड अर्निंग, और यू कैन से हार्ड अर्नड मनी। हार्ड अर्नड मनी आपने सुना होगा गाइस, मनी को एक क्वालिटी दी गई है, हार्ड अर्नड, बड़ी मुश्किल से कमाए जाने वाला पैसा। सो गाइस ये सारे एपिथेट होते हैं। गॉट इट? एक एक आपकी लिटरेरी डिवाइस और आएगी, ट्रांसफर्ड एपिथेट। वहाँ भी जो एपिथेट का मतलब होगा गाइस, दैट विल बी एडजेक्टिव। गॉट इट? तो आगे डिस्कस करेंगे उसको।
अभी देखते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वन इज एपोस्ट्रोफे। कैसे वो एपोस्ट्रोफे नहीं है जो हम ग्रामर में पढ़ते हैं, जो ऐसे लगाया जाता है राम्स या चिल्ड्रंस, ऐसे एपोस्ट्रोफे लगाए जाते हैं, वो नहीं है गाइस। ये गाइस एक लिटरेरी डिवाइस है। एपोस्ट्रोफे का यूज़ कहाँ किया जाता है? इट इज़ यूज टू एड्रेस अ डेड एब्सेंट पर्सन और थिंग। जब भी आप किसी पोम में, किसी लिटरेचर में, किसी ड्रामा में, किसी और भी पार्ट में किसी एब्सेंट पर्सन को मेंशन करते हैं, एड्रेस करते हैं, तो दैट बिकम्स एपोस्ट्रोफे। ओ गॉड वेयर आर यू स्टेइंग। गॉड देखिए, गॉड इज एब्सेंट, दो गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, सब जगह प्रेजेंट है वो, लेकिन अभी हमारे सामने फिलहाल नहीं है, तो उनको जब हम एड्रेस करेंगे तो दैट विल बी एपोस्ट्रोफे। वेल मिस्टर टेरर, डर जो है दिखता नहीं है, इसका मतलब एब्सेंट होता है, तो इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम डीप वाटर, तो ये भी क्या है गाइस? एपोस्ट्रोफिक एग्जाम्पल है। डेथ बी नॉट प्राउड, डेथ इज ऑल्सो एब्सेंट, यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट टच इट, तो एब्सेंट होती है। जब हम उसको एड्रेस करते हैं तो विच पोएटिक डिवाइस इट बिकम्स, which literary device it becomes, that is called apostrophe. Got it? Remember that it is different from the apostrophe of grammar. Got it? Let's move on to the next one guys. Next पे बढ़ते हैं, that is called metonymy. Metonymy क्या है? Substitution of one term for another. जब आप substitutes का use करते हैं guys, एक term के लिए दूसरे term का use करते हैं, तो that become metonymy. Metonymy क्या है? I'm reading चेतन भगत. Remember that you are reading the books. आप बुक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन बुक्स को आपने सब्सिट्यूट कर दिया है किससे? चेतन भगत से। तो जब आप सब्सिट्यूट करते हैं तो दैट बिकम्स मेटोनिमी। ऐसे ही दे वर लिसनिंग टू लता मंगेशकर गाइस, दे वर नॉट लिसनिंग टू लता मंगेशकर, दे वर लिसनिंग टू हर सॉन्ग्स, लेकिन वर्ड का सब्सिट्यूट कर दिया गया। तो सब्सिट्यूशन जहाँ है गाइस, वो क्या बन जाता है आपका? मेटोनिमी। गॉट इट? नेक्स्ट वन इज क्वाइट सिंपल, दैट इज इमेजरी। इमेजरी की बात कर लेते हैं गाइस। इमेजरी इज क्वाइट सिंपल, बहुत सिंपल है। इमेजरी इट क्रिएट्स अ मेंटल पिक्चर whenever you are reading a statement of a poem or a literature and all of a sudden it creates a mental picture, आपके दिमाग में mental picture बनाती है वो statement, जैसे कि earthquake related कोई word आ गया और mental picture आपके अंदर बन गई, आपके दिमाग में आने लग गए वो scenes, वो fear आपके अंदर आने लग गया, तो that is imagery. The merry children were spilling out of their homes, merry children की image बनाता है, that is from My Mother at 66. Trees were sprinting, ये भी गाइस आपका माय मदर एट 66 है, तो दोनों मेंटल पिक्चर बनाते हैं, सो बोथ विल बी द एग्जांपल, और यू कैन से बोथ आर द एग्जांपल ऑफ इमेजरी। गॉट द पॉइंट गाइस? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली पोएटिक डिवाइस कौन सी है। हाइपरबोली एंड ओवरस्टेटमेंट। सबसे पहले तो जान ले गाइस, इट इज हाइपरबोल नहीं होता ये, इट इज हाइपरबली, खली का भाई बली, हाइपरबली, और इसको क्या बोलते हैं गाइस? ओवरस्टेटमेंट भी बोलते हैं। हाइपरबली एंड ओवरस्टेटमेंट, एग्जैजरेशन ऑफ फैक्ट, जब आप बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, कोई जब फेंकता है, जब पोएट एग्जैजरेट करने लगे, बढ़ा चढ़ा के बोलने लगे, तो समझ लीजिएगा हाइपरबली का यूज़ किया जा रहा है। ही स्कोर्ड अ गोल एंड द एंटायर वर्ल्ड रोज टू, एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया थोड़ी ना खड़ी होगी यार, ऑडियंस स्पेक्टेटर्स जो होंगे वही तो खड़े होंगे बस, लेकिन बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, स्पेक्टेटर्स को क्या बोला गया? द वर्ल्ड, पूरी दुनिया, तो दैट इज एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन, हाइपरबली, ओवरस्टेटमेंट, याद रखना बढ़ा चढ़ा के। शी विंक्ड, उसने आंख मारी, एंड एवरीवन अराउंड हर फेल डाउन, और हर कोई गिर गया। ऐसे कैसे हो सकता है यार? इट इज़ नॉट पॉसिबल, एक आधा गिर गया होगा, लेकिन उसको एग्जैजरेट किया गया, बढ़ा चढ़ा के बताया गया, तो दैट बिकम्स हाइपरबली और ओवरस्टेटमेंट। गॉट द पॉइंट गाइस? बाकी और दो डिस्कस करते हैं। यूफेमिज्म और जुगमा, नई पोएटिक डिवाइसेस हैं। बच्चे पूछते हैं सर आपने एक्सट्रैक्ट्स तो बना दिए हैं, यूफेमिज्म तो समझा दो। यूफेमिज्म होता है क्या है गाइस? यूफेमिज्म होता है गाइस टू यूज इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन इंस्टेड ऑफ ऑफेंसिव वन। इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन का यूज करना किसकी जगह? ऑफेंसिव। गलत ना बोल के प्यार से बोलना, गुस्से में ना बोल के शांति से समझाना, गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करके अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना इज कॉल्ड यूफेमिज्म। गॉट इट? माई फादर डाइड एट द एज ऑफ 64, अगर आप बोलोगे मेरे पापा 64 की एज में मर गए, तो दैट इज ऑफेंसिव। लेकिन अगर आप उसको यूफेमाइज करते हैं, माई फादर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 64, दैट विल बी इनऑफेंसिव, तो ये क्या बन जाएगा गाइस? यूफेमिज्म। तो ऑफेंसिव वर्ड का यूज ना करके, ऑफेंड ना करके, आपको इनऑफेंड करना है। इनऑफेंसिव टर्म का जब हम यूज करते हैं, या पोएट यूज करता है, या राइटर यूज करता है, तो दैट बिकम यूफेमिज्म। करेक्ट? देखने को मिल सकती है आपको कहीं ना कहीं लिटरेचर के अंदर।
नेक्स्ट वन इज जुग्मा। जुग्मा की बात करते हैं गाइज, ये भी नई है लिटरेचर के अंदर। लिटरेचर के अंदर तो बहुत पुरानी है, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं है। जुग्मा क्या होता है गाइज? यूज ऑफ अ वर्ड, स्पेशली वर्ब का इन ए सेंटेंस टू मॉडिफाई अदर वर्ड्स। एक वर्ब का यूज करना जो दूसरे पार्ट को अपने आप मॉडिफाई कर दे। गॉट इट? शी ब्रोक माई फोन एंड माई हार्ट। उसने मेरा फ़ोन तोड़ दिया और फ़ोन टूटने के साथ मेरा दिल टूट गया। यानी एक तीर से दो शिकार कर दिए, ब्रोक से फ़ोन भी तोड़ दिया और हार्ट भी तोड़ दिया। ही टुक हिज हैट, उसने अपनी हैट भी ली, एंड ही टुक हिज लीव एज वेल। गॉट द पॉइंट गाइस? जब एक ही वर्ब दूसरे पार्ट को भी मॉडिफाई करेगी तो दैट विल बिकम जुक्मा। इसके एग्जाम्पल आप सर्च कर सकते हैं। गॉट इट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स एंड पैराडॉक्स को भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द एंड ऑफ द वर्ड्स। जब बिगिनिंग में आता है, जब बिगिनिंग में आता है तो दैट बिकम्स एलिट्रेशन, और जब एंड में आता है गाइस तो दैट बिकम कॉन्सोनेंट्स। ये आपको याद रखना है। स्लिप, स्लॉप, पी एक कॉन्सोनेंट है गाइस, एंड में आ रहा है। क्रीक, क्रॉप, के एक कॉन्सोनेंट एंड में आ रहा है। टॉप, टिप, पी, फिर वंस अगेन पी क्या है? कॉन्सोनेंट। एंड में जब भी आ जाए तो वो क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। बिगिनिंग में जब भी आएगा तो वो एलिट्रेशन हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? पैराडॉक्स अब देखते हैं गाइस। पैराडॉक्स क्या है? स्टेटमेंट दैट सीम्स एब्सर्ड। एक ऐसी स्टेटमेंट जो आपको मूर्खतापूर्ण लगेगी, जिसका कोई यूटिलिटी नहीं होगी, लेकिन वो स्टेटमेंट, उसका जो मीनिंग होगा वो बहुत गहरा होगा। ऐसी स्टेटमेंट्स को, ऐसी लाइन्स को क्या बोलते हैं गाइस? कि उसमें क्या यूज़ किया गया? पैराडॉक्स यूज़ किया गया। गॉट द पॉइंट? आगे देख लेते हैं पैराडॉक्स में क्या। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन। देखिए दिस इज इम्पॉसिबल, लेकिन लॉजिक देखिए, लॉजिक बिल्कुल सही है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, कि चाइल्ड जो है फादर ऑफ अ मैन, वो ऐसी हरकतें कर देता है, कई बार इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाता है, ऐसे लगता है वो बड़ा हो गया, अपने बाप से भी बड़ा हो गया। तो स्टेटमेंट बिल्कुल एब्सर्ड है, कोई मीनिंग नहीं लगता, लेकिन मीनिंग बहुत गहरा है। Coward dies many times before their death, but Valiant dies only once. Picked from Julius Caesar, one of the best plays, one of the best dramas I've ever read. तो जूलियस सीजर में से पिक किया गया है कि कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। कोई भी इंसान मैनी टाइम्स कैसे मर सकता है? तो स्टेटमेंट तो एब्सर्ड है, कोई यूटिलिटी नहीं है, लेकिन मीनिंग बहुत गहरा है कि कायर बार बार मरते हैं, एंड बहादुर वेलियंट डाइज ओनली वंस। गॉट द पॉइंट गाइस? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आई होप एवरीथिंग इज गेटिंग क्लियर। एल्यूजन, एल्यूजन की बात कर लेते हैं। अ पासिंग रेफरेंस टू हिस्टोरिकल इवेंट, दिस इज इवेंट, टी इज मिसिंग, टाइपिंग एरर है गाइस। जब आप लिटरेचर के अंदर पासिंग रेफरेंस देते हैं, स्पेशली हिस्ट्री से, तो वो क्या हो जाता है? एल्यूजन होता है। देखिए इस एग्जाम्पल में लाइक का यूज़ किया गया, तो सिमिली भी है यहाँ पे, और लो ड्रामा का एग्जाम्पल दिया गया, हिस्ट्री से एग्जाम्पल दिया गया, तो एल्यूजन भी है। गॉट इट? एक और भी है, डोंट बिहेव लाइक अ स्क्रूज। लाइक आ गया तो ये सिमिली भी है गाइस, तो ऑप्शन में यहाँ पर एल्यूजन भी हो सकता है। स्क्रूज वॉज वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ क्रिसमस कैरल। आपने पढ़ा होगा, बहुत खूबसूरत प्ले है क्रिसमस कैरल। इसको पढ़ना, अगर नहीं पढ़ा तो। लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी गाइस, पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा आप। रिफ्रेन, रिफ्रेन क्वाइट सिंपल है गाइस। रिफ्रेन में क्या होता है? रिफ्रेन it is a phrase or a line repeated at intervals in a poem, especially at the end of every stanza. आपने पोम्स पढ़ी होंगी, फादर टू सन पढ़ी होगी क्लास 11th में। was it the day, was it the day, where did my childhood go, लाइन्स रिपीट होती हैं बार बार, और स्पेशली याद रखना एंड में जब रिपीट होती है तो वो क्या कहलाता है गाइस? इट इज कॉल्ड रिफ्रेन। आपने ब्रूक पढ़ी होगी क्लास 9th में, men may go men may come but I go on forever, ब्रूक की एक रिफ्रेन है। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, बहुत प्यारी पोम में से माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, बार बार रिपीटेड है ये। तो ये जो लाइंस होती हैं बार बार रिपीट करना, हम जब लिटरेचर पढ़ेंगे वहाँ भी रिफ्रेन का यूज़ आएगा, कि वो बार बार रिफ्रेन कर रहा था, यानी बार बार सेम वर्ड्स का यूज़ कर रहा था। सेम वर्ड्स का यूज़ होना पोइट्री में, लिटरेचर में, स्पेशली एट द एंड ऑफ द पोम, वो क्या होता है गाइस? रिफ्रेन। करेक्ट? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा। एनाफोरा क्या है गाइस? एनाफोरा है आपकी, इट इज द रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लोज। पूरा का पूरा क्लोज रिपीट होता है। देखिए इंस्टेड ऑफ, 3 लाइन पिक की गई है एक पोम में से, एक सेल्फ रिटन पोम है। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ, पूरा का पूरा सेम, तीनों की तीनों लाइनें सेम क्लोज से जब रिपीट हो, क्लोज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, जब क्लोज से रिपीट हो गाइस तो वो क्या बन जाता है? एनाफोरा बन जाता है। गॉट द पॉइंट? और एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे।
उसके बाद हम बात कर रहे थे ट्रांसफर्ड एपिथेट की। एपिथेट मैं आपको बता ही चुका हूँ। एपिथेट का मतलब होता है गाइस, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में मैंने आपको क्या बताया था। एपिथेट का मतलब होता है गाइस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, डी साइलेंट होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ट्रांसफर्ड क्या है कि किसी की क्वालिटी किसी और को दे देना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर एन एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड टू अदर नाउन दैट इट एक्चुअली डिस्क्राइब्स। एक्चुअल बंदे को नहीं दिया जाता, एक्चुअल चीज को नहीं दिया जाता, किसी सेकंड पर्सन को दे दिया जाता है, सेकंड चीज को दे दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। एग्जांपल भी देख लेते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट के क्या है। When aunt is dead, her terrified hens will lie. Here the adjective terrified has been used for hens in place of Aunt Jennifer. यहाँ पर कौन डरा हुआ है गाइस? हाथ डरे हुए नहीं है आंट जेनिफर के। यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है ये आंट को देना चाहिए था, लेकिन ये किसको दिया गया है गाइस? हेंस को दिया गया है। तो एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर दिया गया, दैट इज व्हाई इट इज ए ट्रांसफर्ड एपिथेट। A sweet unknotted young boy sitting at the back of the dim class. Here the adjective dim has been used for the class instead of the room. क्लास को डिम बोला गया, इस क्लास डिम थोड़ा ना होगी, रूम डिम होगा ना। तो एडजेक्टिव को ट्रांसफर किया गया। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। यहाँ पर कोल्ड जो वर्ड है गाइस वो किसके लिए? सी के लिए यूज किया गया इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट फॉर कोल्ड हार्टेड मैन। कोल्ड जो है ये कोल्ड हार्टेड मैन के लिए यूज किया जाना चाहिए था, सी के लिए नहीं। तो एडजेक्टिव्स को ट्रांसफर जब किया जाता है तो इट बिकम्स ट्रांसफर्ड एपिथेट। बहुत बार, मेनी अ टाइम्स दिस क्वेश्चन इज पुट अप, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। हम तो अपने हर बच्चे से पूछते हैं क्वेश्चन कि व्हाट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस। कंट्रास्ट और सिंबोलिज्म भी देख लेते हैं। कंट्रास्ट क्या है? इट इज अ लिटरेरी डिवाइस थ्रू विच द पोएट, राइटर, ऑथर डिफरेंशिएट्स बिटवीन टू पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स और सब्जेक्ट। जब कंपैरिजन किया जाता है गाइस, डिफरेंशिएट किया जाता है, तो दैट बिकम्स कंट्रास्ट। खूबसूरत सी एक छोटी सी प्यारी सी लाइन है, सीमापुर इज ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली एट माइल्स अवे फ्रॉम इट। लो स्प्रिंग से लिया गया है, उसमें जो लिया गया कंट्रास्ट किया गया है किसको? सीमापुरी और दिल्ली को। करेक्ट, डिस्क्रिमिनेट किया गया, डिफरेंशिएट करा गया। दिल्ली को किससे किया गया? सीमापुरी से। यंग ट्री स्प्रिंटिंग एंड माई चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मेरी चिल्ड्रन है गाइस, ये माई नहीं है, दैट इज मेरी। करेक्ट, तो यूथ का डिफरेंशिएट किया गया किससे गाइस? चाइल्डहुड से। ये कंट्रास्ट किया गया गाइस, याद रखना कंट्रास्ट यूथ। नेक्स्ट वन इज सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म पे पढ़ते हैं गाइस, लेक्चर बहुत लंबा हो गया बट डोंट वरी, इट्स वेरी यूजफुल। शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। बहुत मेहनत की हमने इस लेक्चर को प्रिपेयर करने में। सिंबोलिज्म क्या है? सिंबोलिज्म इट इज अ पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस यूजिंग एन एक्शन दैट मीन्स समथिंग मोर देन इट्स लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग से गाइस, लिटरल और फिगरेटिव मीनिंग आपके टीचर्स आपको क्लास में समझा देंगे। लिटरल मीनिंग क्या होता है, फिगरेटिव मीनिंग क्या होता है। जब उससे ज़्यादा वो कन्वे करे और भी कुछ सिंबलाइज करे तो दैट इज कॉल्ड सिंबोलिज्म। स्क्विरल गेम खाली गिलहरी का गेम नहीं है, ये फ्रीडम को भी सिंबलाइज करता है। गॉट इट? एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम मैंने स्लम से ली गई है। सिविलाइज डोम, खाली ये बिल्डिंग्स नहीं है बड़ी बड़ी अमीर लोगों द्वारा बनाई हुई बिल्डिंग्स नहीं है, ये कुछ और भी सिंबलाइज करता है। ये प्रोस्पैरिटी, ये एजुकेशन को, ये रिचनेस को भी सिंबलाइज करते हैं। क्लीन क्लोथ्स, सिर्फ सफ़ेद कपड़े, साफ कपड़े नहीं, ये पीस को भी सिंबलाइज करते हैं। तो जब लिटरल फिगरेटिव मीनिंग से और भी आगे कुछ मीनिंग निकले, कोई सिंबलाइज करे, तो दैट बिकम्स सिंबोलिज्म। गॉट द पॉइंट? तो सिंबल भी आ सकता है ऑप्शन, आपको याद रखना है। सिंबल भी आ सकता है एंड सिंबोलिज्म भी आ सकता है, तो दोनों को ध्यान में रखें, ऑलमोस्ट सेम है दोनों। आयरनी हम डिस्कस कर ही चुके हैं गाइस। आयरनी क्या होती है एक बार फिर देख लेते हैं। आयरनी इज अ लिटरेरी डिवाइस व्हिच हेल्प्स अस फिगर आउट द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस। जो हमें रियलिटी और अपीयरेंस के बीच में डिफरेंस पता है। साहिब का नाम गाइस, सबसे बड़ी आयरनी साहिब के नाम में, ये आपको बता देगा कि रियलिटी बता देगा कि होता है क्या और होता क्या। नाम है उसका, नाम का जो मीनिंग है दैट सजेस्ट ही इज लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि वो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, लेकिन रियलिटी में वो क्या है? रैक पिकर है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा भी जाता है व्हाट इज द आयरनी इन साहिब्स नेम। पहला जो स्टेटमेंट है वो ये, द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। टाइगर किंग अगर आपने पढ़ा है, शायद किसी ने नहीं पढ़ा होगा बिकॉज इट्स नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सिलेबाई का आपका पार्ट नहीं है। तो उसमें बोला जाता है ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, जिसका मतलब होता है पेशेंट बच गया, लेकिन वहाँ पर पेशेंट बचता नहीं, वो मर जाता है। तो रियलिटी और अपीयरेंस के बीच में जो डिफरेंस बताता है दैट इज कॉल्ड आयरनी। गॉट द पॉइंट? सभी समझ आ गया होगा। और एग्जांपल्स के लिए गाइस गूगल कर लीजिएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 2 या 3 ही रह गए हैं। एलेगरी, एलेगरी क्या होता है गाइस? एलेगरी रेयरली पूछा जाता है। इट इज अ नैरेटिव स्टोरी फाउंड इन वर्स दैट हैज अ पर्पस ऑफ इलैबोरेटिंग एन आइडिया।
वर्स की फॉर्म में एक स्टोरी होती है जो एक आइडिया को एलैबोरेट करती है, दैट इज़ एलेगरी। एलेगरी पे कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन कहीं स्टोरीज़ को ना वर्स की फॉर्म में, पोम्स की फॉर्म में एलैबोरेट किया जाता है, आइडियाज़ को एलैबोरेट किया जाता है, तो वो एलेगरी बन जाता है। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट है पैरेललिज्म गाइस। पैरेललिज्म भी इंपॉर्टेंट है, नया है, सारे समझ लीजिए। इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस विच शोज द फ्रेजेस हैविंग द सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। जब एक ही पोम की लाइन में सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज होते हैं, सेम स्ट्रक्चर, यानी पहली लाइन में अगर इज प्लस नाउन है तो सेकंड कोमा के बाद भी इज प्लस नाउन है। पहली में इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी है, सेकंड में भी इज एम आर यानी टू बी फॉर्म प्लस वी वन प्लस आई एन जी है। सेम स्ट्रक्चर यूज होंगे गाइस, तो वो क्या होगा? पैरेललिज्म। दैट इज वन स्टेप फॉर मेन, दैट इज वन स्टेप फॉर मेन, वन स्टेप फॉर मेन, वन जाइंट लीव फॉर मैनकाइंड। देखिए सिमिलैरिटी आपको दिख जाएगी स्ट्रक्चर के अंदर। वन स्टेप फॉर मेन, वन जाइंट लीव फॉर मैनकाइंड, स्ट्रक्चर सेम मिलेगा आपको, तो कहीं ना कहीं पैरेलल है गाइस, इसलिए कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? पैरेललिज्म। एवरी टाइम यू स्माइल एट समवन, इट इज एन एक्शन ऑफ लव। अब देखिए, इट इज एन एक्शन ऑफ लव, इट इज अ गिफ्ट, इट इज अ ब्यूटिफुल थिंग, सेम स्ट्रक्चर है। इट इज बीच में आया हुआ सेम स्ट्रक्चर है, तो व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? तो कौन सी लिटरेरी डिवाइस बन जाएगी? पैरेललिज्म बन जाएगी। करेक्ट। लास्ट पे बढ़ते हैं गाइस, बहुत लेंदी हो गया है ये सेशन, इट हैज क्रॉस्ड 38 मिनट्स, बट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। लास्ट पे बढ़ते हैं, एंजेममेंट। एंजेममेंट भी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है आपके सिलेबस में गाइस, कर लेना ये 30 की 30। आपके टीचर्स आपको नहीं कराने वाले, दे विल कीप स्टिकिंग टू 5 6 7 8 9 10, बस 30 कर लेना, बिकॉज यू नेवर नो, बोर्ड एग्जाम है, एमसीक्यूज है, कौन से ऑप्शन में आ जाए। 30 की 30 कर लोगे, बिलीव मी, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं एंजेममेंट। एंजेममेंट क्या होता है गाइस? इट इज अ लिटरेरी डिवाइस वेयरइन थॉट्स एंड आइडियाज आर कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पोज। गाइस जब पोज, कोमाज, बिना रुके हुए जब स्टेटमेंट्स को कैरी किया जाता है वन टू अनदर, फीलिंग को दूसरी फीलिंग पे लिया जाता है, तो गाइस वो क्या बन जाती है? आपकी एंजेममेंट बन जाती है। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, अ पुअर प्रेयर, रुक जाना चाहिए था, रुके नहीं। दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स इज आर अपॉन द स्टेज, रुक जाना चाहिए था, रुके नहीं। एंड देन देखिए कोई कोमाज नहीं आ रहे, रेयरली यूज किया जा रहा है, तो कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है गाइस? एंजेममेंट यूज की गई। गाइस वंस अगेन आई वुड एडवाइज यू कि आप इनके एग्जाम्पल्स सर्च करें, रिसर्च करें। मैं तो अपने हर बच्चे को समझाता हूँ कि कुछ भी करो उससे पहले रिसर्च करो। गूगल आपके पास है, गूगल पे जाओगे, पोएटिक डिवाइसेस क्लास 12 डालोगे तो हमारा ही आर्टिकल टॉप पर आएगा, विच इज़, आई शुड नॉट से, मुझे कहना नहीं चाहिए, विच इज़ अ बिग डील। दुनिया भर के लोग लिखते हैं, बट दैट काइंड ऑफ कंटेंट हैज़ नेवर बीन रिटन। तो 30 लिटरेरी डिवाइस आप कर लेंगे तो यू विल हैव एन एज ओवर अदर्स, और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। फिर लास्ट में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज वी वर्क हार्ड, वी वर्क डॉगेडली, बहुत मेहनत करते हैं हम, टायरलेसली मेहनत करते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सो दैट दे कैन बी बेनिफिटेड इन देयर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, हैव अ नाइस डे।